Welcome everybody, welcome. You're listening to This Is Not What I Meant. I'm Anudeep Bardyal, your host, and today I'm gonna talk about this very interesting show because there's a lot to unpack, and as I've been like a mad fan of Mad Men, this show came into my purview and I was like, "Acha, मेरे को ये देखना पड़ेगा." Yeah, so I'm gonna talk about Suits, and with me is my very dear friend who is a big fan of both of these shows. So I've done an episode on Mad Men. If you want to check that out, it's out. It's called The Friendship in Absentia, and that's like unpacking about Mad Men. And now we're gonna talk about Suits with Sameer Agarwal. Hi, Sameer. Hello, Anudeep. I'm so glad to be here. Hi, Sameer. How are you? I'm good. How are you? I am very good. I've been wanting to talk about this show on your podcast, and I'm glad that you invited me finally. So yeah. Yes, awesome. शो पे आके कैसा लग रहा है? बात शो पे करेंगे. आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रिविलेज फील हो रहा है मेरे को. दो पॉडकास्ट होस्ट के साथ मेरे को मौका मिल रहा है. It's my first time ever on a podcast, so the pressure is on me. Pressure would be on both the sides, and हमारा हिसाब बराबर है. You suggested Mad Men to me, and I suggested Suits to you. Yeah. And I remember very profoundly कि देख ले Suits, देख ले. The thing is with like जो इतने लंबे shows होते हैं, there's a lot of commitment towards watching this. कि कोई बोले ना ये देख लो show, तो it's like अच्छा देखना पड़ेगा. तो I mean about that कि पहला episode obviously देख के आप कुछ भी judge करते हो. So with that, the first episode was amazing. So मैंने पूरा show देखा उसी वजह से. एक्चुअली यार, तो 9 सीजन्स किसी भी शो के बहुत लंबा कमिटमेंट होता है. मेरे को याद है कि मैंने सेकेंड ईयर अराउंड कॉलेज में स्टार्ट किया था ये शो, एंड माय रूममेट वाज लिटरली फेड अप विथ मी, क्योंकि वो जब भी रूम में आता था मैं सूट्स देख रहा होता था. अरे क्या है भाई, सोते जागते खाते पीते तो सूट्स देख रहे. बोले भाई एडिक्शन है, पता नहीं क्या, मतलब छूट ही नहीं रहा ये शो. Addiction तो है. Before we get any further in this discussion, let's talk about the plot. So what I do is generally read the plot of Wikipedia, but I found a new website. It's called Mental Floss. So I'll just read out the plot from that. So like on June 23, Okay. 2011, USA Network debuted a law drama called Suits, originally named A Legal Mind. Did you know that? So the show was originally named as The Legal Mind? A Legal Mind, yes. And then it changed to Suits. But Suits is like more memorable, That's right? interesting. Huh. Yeah. It's easy to remember. It's like something to go along with, right? So yeah. So Aaron Korsh, who's the creator of the show, he made the show about a college dropout named Mike Ross, who passed the bar exam, but he didn't have a law degree, and he stumbled into an interview with Harvey Specter. Yeah. And who despite he knew the secret, but he was like कि ये बंदा competent है, इसको हम job पे रखेगा, चलो करते हैं. And that's the plot of the show. No. क्या फर्क पड़ता है, हम लीगल फर्म के लिए काम करते हैं, बट Yeah, like that's the biggest thing, मतलब कि मतलब शो के शुरू में ही ना कि यू कितना ज्यादा ये चीज पे डिबेट हो सकता है, बट काइंड ऑफ इट स्टार्ट्स द शो इन अ वेरी गुड वे कि एक प्लॉट सेट करते हैं शो के लिए. हाँ. सो दैट्स नाइस. काफी मतलब क्योंकि एक आयरॉनिकल सा बेस बन गया ना कि आप हो एकदम स्ट्रेट एज एन एरो कि भाई मैं तो बाय द बुक बाय लॉ सब चीज करता हूँ, बट ठीक है ये बंदा लॉयर है ही नहीं. तो मतलब जो लॉयर ही नहीं है और जो वीट के साथ पकड़ा गया है वो भी एक फुल ब्रीफकेस. पूरा ही मतलब सब कुछ गलत हो गया. जब तक वो इंटरव्यू तक पहुंचता है, जो बिल्डअप दिखाते हैं एक्चुअली, जो प्लॉट को सेट करते हैं कि वो मतलब वीड उसको डिलीवर करना है, उसको $25,000 चाहिए होते हैं, और वो सारी चीजों के साथ वो जो आता है उसका, तो वो आई गेस शो के लिए बहुत स्टार्ट करने के लिए किसी पायलट. मेरे को बहुत सारे शोज देखे हैं मैंने, बट सूट्स इज वन ऑफ दोज शोज जिसका पायलट एपिसोड बहुत बहुत जबरदस्त. हाँ, ये मेरे को लगा बिकॉज एक तो जैसे उन्होंने शो सेटअप किया कि एकदम अर्जेंट सिचुएशन है कि बंदे को हेल्प चाहिए, पूरा एकदम इट्स वेरी ग्रिपिंग. बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई भी शो स्टार्ट करते हैं, इफ यू नो कि भाई 1 घंटे का एपिसोड है, तो समथिंग हैज टू हैपन इन इट फॉर यू टू फॉलो थ्रू. तो आई विल से कि जैसे
I'll admit मैंने ब्रेकिंग बैड नहीं देखा है, like I watched 4 episodes of it and मेरे को कुछ मिला नहीं इसमें ऐसे टिकने के लिए. I know you have watched that show, right? Yeah, yeah, And you love it, yeah, yeah. है ना? The But you best agree show with of all time, hands down. but you agree with me on this ना कि पहले के like थोड़ा टाइम लगता है स्टोरी सेटअप होने में. हाँ, सेटअप करने में, बट दैट इज ऑल्सो ट्रू विथ मेनी शोज, राइट? यू नो, क्यों मैडमैन चलो मैं मान सकता हूँ कि मैडमैन इज मोर टाइप ऑफ की एडवर्टाइजिंग पिचिंग वगैरह शुरू हो जाती है शुरू के एपिसोड्स में, बट इफ यू वॉच अदर शोज की उसमें सेटअप में थोड़ा टाइम लगता है. एंड मोस्ट बेसिकली क्योंकि ये सिटकॉम है, आई गेस कि फर्स्ट एपिसोड को ग्रिपिंग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिएटर्स के लिए. सो दैट इज द मेन रीजन, आई गेस तूने ब्रेकिंग बैड नहीं देखा अभी तक. I despise you. अच्छा, so that I can watch it like the first time I'm watching this ना. Yeah, sure. चलो ठीक है, वो भी देख लेंगे. बट अबाउट द पायलट इटसेल्फ, सो आई थिंक सूट्स का जो पायलट है, आई फील कि काफी कुछ जो भी वो लेटर शो में करने वाले हैं, जो उसका जो राइटिंग है बंदे का, इट्स काइंड ऑफ सेट अप फॉर कि अच्छा ये जो पायलट में दिखाया है वैसे टाइप का ही रहेगा शो आगे भी. ठीक है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस फैक्ट कि जो लॉ फर्म्स होती हैं वो पार्टनर्स के नाम पे क्यों होती हैं? I don't have a particular knowledge कि ऐसा क्यों होता है, but I've seen because my brother-in-law is a chartered accountant and same goes with the chartered accountant firms also, कि वहाँ पे पार्टनर्स के नेम के साथ फर्म का नाम होता है. तो आई आस्क्ड हिम अबाउट इट कि उन्होंने बोला कि देयर आर सर्टेन रेगुलेशंस इन प्रोफेशंस लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, ऐसा कुछ रेगुलेशंस होते हैं. सबसे पहले तो कि एक पार्टनर का नाम टाइटल वॉल पे होना जरूरी है. अच्छा. कि यू हैव टू हैव दैट नेम इन योर फर्म टू गो बियॉन्ड विद इट. एंड सेकेंड ऑफ ऑल की लिमिटेड नेम्स के ऑप्शंस होते हैं आपके पास. थर्ड ऑफ ऑल की आप मार्केटिंग नहीं कर सकते खुद की. दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो सपोज if you are a chartered accountant in practicing in India, you cannot market yourself as an, मतलब आप एडवर्टाइजमेंट नहीं बांट सकते कि आई एम द बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हियर, सो आके मेरे से आप अपने ऑडिट्स करा लो, ये करा लो. सो आई गेस वही पर्टिकुलर रीजन है लॉ फर्म्स के लिए भी. बट इट्स वेरी, क्योंकि अगर आप इंडिया में फिर लॉ फर्म्स को लाके देखोगे तो नाम कैसा निकलता है, पुष्पराज चिरंजी लाल. तो उसका नाम है तो मतलब दैट मेक सेंस, क्योंकि अगर आपने अपनी फर्म का नाम अपने नाम पे रख दिया तो आप फर्म के लिए मार्केटिंग कर सकते हो, है ना? एग्जैक्टली हाँ. और क्योंकि मेरे को ये भी एक पॉइंट लगता है, क्योंकि कोई भी फर्म का ना एक फेमस लॉयर होता है जिसके वजह से वो फर्म जाना जाता है. तो वो भी एक बहुत मेजर रीजन है कि लॉयर ही लॉ फर्म का ब्रांड है, तो उसी का नाम उस पे रहे. तो यही रीजन है. यू आर परफेक्टली करेक्ट ऑन दिस. मैं मतलब अभी सर्च मारा था तो उसमें भी यही लिखा हुआ था कि पीपल वांट टू लाइक एसोसिएट अ नेम कि अच्छा भाई बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग देम ना. हाँ कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि नाम खराब होगा तो पूरा फर्म का लेकर नाम खराब करोगे उस सेंस में. तो ये हाँ, ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता थी, व्हिच इज नाइस. सही है ना, फिर पॉडकास्ट पे ऐसी बातें पता चलती हैं बात करके, है ना? बहुत सही है. मैं भी शॉक रह गया था कि यार ये कैसा है कि अगर आप खुद को एडवर्टाइज ही नहीं कर सकते. तो अब जैसे कॉर्पोरेट्स का क्या होता है कि मार्केटिंग इज द ओनली वे टू गो अबाउट, राइट? कि अपने लिए नाम बनाना तो वैसे ही होता है. बट दिस प्रोफेशन इन्वॉल्व्स कि हाई लेवल के केसेस आपको कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आप खुद को मार्केट ही नहीं कर सकते. सिर्फ उनका केस ही एक ऐसा होता है कि कोई फेमस केस उन्होंने किसी टाउन या डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके नाम से लोग एसोसिएट करते हैं. इट्स वेरी tough on their part to make a name for themselves. ये तो है. You're right about कि अपना नाम बनाना होता है. For like for this instance, like even in Suits there is like Pearson Hardman and then फिर Mad Men में भी वो उनका अपना फर्म होता है like Sterling Cooper. तो there is somebody named Sterling and there is somebody named Cooper, right? So like मैं जब Suits देख रही थी ना, I was very surprised कि जैसे मेरे दिमाग में लॉ का तो चलो ठीक है, फ्रॉम अ टीवी पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को ऐसा लगता था कि अच्छा लॉयर्स जो काफी फेमस टाइप के होते हैं, देयर लाइक क्रिमिनल लॉयर्स. सो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड व्हेन आई सॉ लाइक कॉर्पोरेट में भी इतना ड्रामा हो सकता है. सो दैट वाज लाइक वेरी फन टू सी. एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व होता है. हाँ, मेरे को लगा क्या बोरिंग का, मतलब ठीक है आपने सेटलमेंट कराना है, मर्जर कराना है, बट देन आई रियलाइज्ड सो मच लाइक नेगोशिएशन गोज इनटू इट.
Exactly, क्योंकि I remember once I was on a flight, so I met a auntie. So वो एज अ टिपिकल आंटी फ्लाइट पे वो मेरे करियर के पीछे पड़ गई. तो उन्होंने जनरली मेरे को बताया कि उनका बेटा भी कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहा है. तो शी हैड अ वेरी पर्टिकुलर ओपिनियन कि दिस इज अ वेरी बोरिंग प्रोफेशन, कि कॉर्पोरेट लॉ में ऐसा कुछ एक्साइटिंग होता नहीं है. उनको फूड टेक्नोलॉजी कंपैरेटिवली ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा था इन कंपेयर टू कॉर्पोरेट लॉ. और क्योंकि मैं सूट हाँ, एक्साइटिंग लग रहा था उनको फूड टेक्नोलॉजी. तो आई डोंट नो व्हाई पीपल हैव दिस पर्टिकुलर ओपिनियन कि कॉर्पोरेट लॉ बोरिंग होता है, क्योंकि एज फार एज वी हैव वॉच शूट्स तो काफी एक्साइटिंग है. क्योंकि आई गेस जो परसेप्शन है वो इस बात का रहता है नहीं, बिकॉज कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको कंज्यूम करनी है सारी कंपनीज के बारे में, देन फाइनेंस के जो पूरा स्टेटमेंट्स वगैरह पढ़ना, बिकॉज आई गेस वो जो पूरा काम ग्रंट वर्क वाली जो बात है ना इसमें ज्यादा है, आई थिंक मोर देन लाइक क्रिमिनल वर्क. So like in line with this, there is another show called, I think if you might have heard about it, it's called How to Get Away with Murder. Yes, I've heard about it. Yeah, so like Suits is about corporate, right? So How to Get Away with Murder is about criminal law. I mean, naam se pata chal raha hai. And that is exactly what the show is about, like how to get away with murder. काफी रिवीलिंग सा नाम है, How to Get Away from Murder. With murder और या let us talk about the Suits, right? तो मेरा जो परसेप्शन था देखने से पहले ना, like even before you suggested this to me, मेरे को ऐसा लगा कि like मैं बहुत ऐसी थी कि जैसा सूट्स नाम है, सूट्स में ही घूमते होंगे, वही शो होगा. like बिकॉज मैंने पहला सीन इस शो का वो वाला देखा था, लाइक मेरे को बस अब याद नहीं आ रहा, बट पहला सीन मैंने वो देखा था उसमें, बिकॉज आई थिंक जेसिका वाज अबाउट टू लीव या फिर लास्ट केस था उनका कुछ, एंड हार्वी हैड टू मेक समबडी एग्री टू हिज टर्म्स. तो काफी मतलब मस्त सा उसने कुछ झाड़ा था उसको. तो मेरे को लगा काफी स्नॉबी से लोग होंगे पूरे शो में, जिनको मतलब किसी से मतलब नहीं है. And you love snobby people, right? So but there's like white people, like so many white people in this show. like हो क्या रहा है ये? तो पूरा शो इसी के बारे में होना ही था, क्योंकि इट्स अ शो ऑफ पावर, यू नो, कि ये जनरल अमेरिकन ट्रेट वाला शो है कि पावर दिखाओ, पैसा दिखाओ, एम्बिशन दिखाओ, और लाइक हर चीज को पंचेस से शॉट डाउन कर दो. सेटअप, प्लॉट, पंच, ये पूरे शो का सेटअप है. हाँ, मतलब जो पूरी राइटिंग है वो काफी एकदम टिपिकल अमेरिकन स्टाइल, लाइक दे हैव नॉट लेफ्ट आउट एनी ऑफ द क्लीशेज. मेरे को ऐसा लगा. Right from extraordinary recreational activities shown on the show, right from the punches that Harvey uses, and extraordinary many of other recreational activities. You mean smoking? Mudding. मैंने कभी mudding mudding, I didn't know that it's a recreational activity. Mudding, playing tennis is chalo okay, then going for shootouts, all this recreational activities shown on the show. अमीर लोगों के काम है. हाँ, अमीर लोगों के काम, और जो सिर्फ अमेरिका में होते हैं. कि वो स्पेशली मतलब मड भी डिसाइड करा कि भाई ये वाले मड में जाना है. मैंने कहा था कीचड़ होता है भाई, ठीक है, जस्ट डू इट. एंड वो शायद डार्बी इंटरनेशनल से कोई उसका एक राइवल आता है, तो उसके साथ उसका कंपटीशन भी होता है कि मैंने इस मड में नहाया है, मैंने उस मड में नहाया है. मड की क्वालिटीज डिस्कस हो रही है, क्लेज डिस्कस हो रहे हैं. मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे? मतलब मिट्टी में तो हम होली पे नहाते हैं, वो भी गंदी मिट्टी बोलते हैं. लाइक कमिंग टू दिस कैरेक्टर जो उसका राइवल था, जैसे लुइस को ऐसा दिखा रखा है ना, लुइस लिट, हु इज द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट, ही लव्स कैट्स, राइट? हिज कैरेक्टर, द एक्टर is actually allergic to cats. What? Yeah. Rick Hoffman. He's been shown as such a fanatic of cats, and he's actually in person, you're telling that he is allergic of cats.
हाँ, जो एक्टर है वो एलर्जिक है कैट से, तो फिर लाइक ड्यूरिंग शूटिंग ही लाइक दे केप्ट लाइक एपिपेन एंड लाइक एलर्जी के लिए जो भी इसको चाहिए होता है ऑन द साइड। आई डोंट नो व्हाई दे हैड टू शो हिम that he loves cats despite the actor being allergic. Like लोगों को क्या क्या करना पड़ता है To show him as a cat man, they've gone to like limits, I guess. Then कैट पर्सन। क्या बोलूं अब इसके बारे में, क्योंकि मेरे को तो जितना पता है कि उन्होंने स्ट्रेट 3-4 शुरू के सीजन्स में लुइस को एज अ कैट पर्सन बहुत ज्यादा पर्सनिफाई किया है। हाँ, सो लाइक व्हाट इज दैट अबाउट ना, कि मतलब वो ऐसा ट्रेट्स ही वैसे दिखाना चाहते हैं कि दैट ही इज लाइक, आई डोंट नो, लाइक अबाउट कैट पीपल इन जनरल द पीपल like because you have to treat cats as like royalty, right? तो Yeah, आपको yeah. पूरा एकदम मेटिकुलसली केयर करना, सर्व करना आना चाहिए. So I think that is why Louis let go the show as a हाँ, cat person, because he can, you know, service people and still be yeah, like very like snobbish about it. So yeah. that is nice. Be बहुत ही very डिटेल snobbish and very बात है. blunt about everything. मतलब एक ट्रेट्स दिखाने के लिए बिल्ली रखी हुई है पूरे शो में. So that is nice. मेरे को ये नहीं पता था कि उसको एलर्जी है कैट से, तो मतलब It's a new, इंटरेस्टिंग ट्रिविया। हाँ, like puts a new perspective इस बंदे के लिए ना. So like coming to the pilot episode only, because मेरे को लगता है that sets up the whole show. So ये जो चीज है like about his character Mike Ross, do you think कि मतलब उसको जितने पैसे चाहिए थे अपनी like grandma के लिए, like he should have like earned that and then left the place, because obviously he's perpetuating this lie ना कि मैं lawyer हूँ, and obviously ये बात बात बाहर आनी है, you can't control that. तो क्या लगता है कि उसको निकल जाना चाहिए था? आई जनरली थिंक कि माइक रॉस का जैसा कैरेक्टर शो पे दिखाया गया है ना, कि अगर उसको पैसों की सच्ची में वैसी जरूरत होती ना, तो ही हैड मीन्स अदर देन दिस प्रोफेशन और लाइक गेटिंग टू डू दैट वीड डील। वो कैसे भी पैसे कमा लेता, क्योंकि वो इतना स्मार्ट था, स्ट्रीट स्मार्ट था, कि वो पैसे कमा लेता। आई गेस उसके अंदर का वो जो एक था ना कि मेरे को लॉयर बनना है, कि हाँ हाँ ये भी बहुत आर्ग्यूमेंट जा सकता है कि पैसे मिलने के बाद गो एनरोल टू अनदर लॉ स्कूल, बट ऐसा भी है कि उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था सारे लॉ स्कूल्स की तरफ से। हाँ. तो आई गेस कि वो एक अंदर का एम्बिशन उसको रिस्क लेने पे काफी ज्यादा वो कर देता है, एक्साइट कर देता है। एंड मीटिंग हार्वी स्पेक्टर एंड गेटिंग चार्म बाय हिम इज समथिंग एल्स। Yeah, I mean you are right about that. मैंने भी अभी नहीं सोचा था, बिकॉज वो है काफी स्मार्ट, तो वो पैसा, उसको पैसा कमाने में इशू नहीं आना चाहिए. दैट्स द थिंग, राइट? एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली। बट गेटिंग इनटू अ लॉ स्कूल आफ्टर गेटिंग द मनी, और उसकी दादी को आई गेस प्रॉब्लम था हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए, कुछ ही प्राइवेट हाँ सेक्टर हाँ. में शिफ्ट करने के लिए उसको पैसे चाहिए थे। तो आई गेस उसके पास 1000 तरीके थे और पैसे कमाने के, बट जो उसके सामने उस टाइम पे वो वाला सबसे इजीएस्ट था, वो उस पे गया। एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि अगर उसको मौका मिलता, तो आई डोंट थिंक ही वुड हैव चोजन टू रन अवे विद ऑल द मनी दैट ही गॉट, हाँ. क्योंकि उसका इनर एम्बिशन तो लॉयर बनना ही था, क्योंकि लाइफ ने उसको मौका नहीं दिया, या उसने लाइफ के साथ कुछ इधर उधर की चीजें की, तो हमेशा से उसका मोटिव तो वही था। तो आई कि वुडंट लॉयर थिंक कि बनना. या अभी जैसे बोला कि लाइफ में जो भी हुआ या उसने कुछ किया, आई मीन हिज फ्रेंड ट्रेवर, सो लाइक या उसकी वजह से वो लॉ स्कूल नहीं जा पाया, एंड वो आई गेस मेरे ख्याल से फ्रेशमैन ईयर या सोफोमर ईयर में था, तो वो उसकी डीन की बेटी को वो टेस्ट बेच रहा था, उसके वजह से उसको निकाल दिया गया था स्कूल से और उसको मैथ्स टेस्ट ब्लैकलिस्ट कर वाली जो दिया गया बात है. था। हाँ हाँ. हाँ बट लाइक डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस कि मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि जैसे लाइक नॉट इन योर लाइफ और लाइक जस्ट जनरली कि ऐसे जो लोग होते हैं लाइक दे होल्ड यू बैक बट यू डोंट रियलाइज कि वो तुम्हें होल्ड बैक कर रहे हैं या फिर कुछ भी मतलब. आई थिंक इट्स वेरी ट्रू फॉर मैनी पीपल आउट देयर, क्योंकि एक ऐसा होता है ना कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गिफ्टेड होते हो और कई बार आपको रियलाइजेशन नहीं होती, बट सामने वाले आप जिसके साथ रह रहे होते हो उसको इस बात की पूरी रियलाइजेशन होती है, फिर भी वो आपको आपके मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचने नहीं देना चाहते। दे ओनली हाँ. यूज इट टू अ सर्टेन लेवल जहां तक आप उनके काम आ सको। या ट्रेवर वाज वन कैरेक्टर लाइक दैट, कि उसने
आई गेस माइक के पास और बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट ही चोज टू वो ट्रेवर के साथ बना रहे, क्योंकि एक तो वो दोस्ती वाली बात आ गई, और वो जो इमोशनल ड्रामा दोस्त खेलते हैं एक दूसरे पे, तो वो काफी ज्यादा हाँ, ये एक्चुअली होता है कि sometimes even you might have felt during college कि when you are trying to excel into something, you have roommates or friends who have particular or the same interest as you are having, but वो काइंड ऑफ सपोर्ट करेंगे, बट उनके सेंटेंस कुछ अलग टाइप के होते हैं। हाँ, कर ले तू, बट तू थोड़ा देख ले, हाफ हार्टेड, ऐसा हाँ भी मैं होता है। समझ रही हूँ। हाफ हार्टेड जो एक वो होता है, एंकरेजमेंट होता है। हम्म। तो पर वही मतलब जनरल पूरे लाइफ में शो भी में वो उसको वही बोले जा रहे थे ना, लाइक इनिशियल जितने भी एपिसोड्स हैं, लाइक इवन हिज ग्रैंडमा, देन हार्वी को जब पता चलता है कि भाई इसका फ्रेंड इसको ऐसे रख रहा है, तो इट लाइक ही इज एन एंकर टू हिम। he will only hold you down. Yeah. या लाइक एंकर वाला एंकर, नॉट द ऐप दैट आई एम होस्टिंग दिस पॉडकास्ट ऑन, बट यस। Nice plug-in, I must say. हाँ मेरे को भी अच्छा लगा, बट आई कुड लाइक डू दिस। मैंने सोच के बोला है, काफी सोच, लाइक आई हैव रिटन दिस डाउन। ठीक है। Good for you. या ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट हार्वी? लाइक मेरे को जैसा लगा कि जब व्हेन आई वॉच द शो इट वाज लाइक यू नो व्हेन यू सी प्रोटैगनिस्ट एंड देन यू थिंक कि भाई इसके साथ क्या गड़बड़ है या कुछ है, बट हार्वी वाज लाइक कि उसके कोई वाइसेस नहीं थे, मतलब कोई बुरी चीज थी नहीं उसमें एज सच। आई मीन ही वाज वेरी सेल्फ अवेयर एंड पूरा लाइक वेरी कॉन्फिडेंट Mm, अबाउट हिमसेल्फ। सो मुझे एज अ कैरेक्टर मेरे को हार्वी स्पेक्टर काफी लाइक इंस्पायरिंग एंड पसंद आया काफी। it's like Harvey Specter is the man that every man wants to be. हम्म। उसको पूरे शो में ही वैसा डिपिक्ट किया गया है कि कोई फैलिसी नहीं है उसके साथ, कि वो अपनी कमजोरियों को, ऑल्दो कि लेटर हाफ ऑफ द शो में उसकी कमजोरियां निकल के आती है, या उसका पास चाइल्डहुड सब कुछ निकल के आता है, बट इनिशियली, और जो वो खुद को एक, तूने जैसे सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बात करी, हाँ। he is incredibly self aware about himself, his powers, his strengths and his weaknesses. या मतलब as a high powered lawyer in New York City, he has everything that he needs to get by, a beautiful apartment, he has a taste in everything, he is a sports fanatic, he know how to get his way, he's a charmer, woman seducer, you may say that. Yeah, he's everything that a man could ask, like a woman could ask for in a man, or a man could ask for in a man. So particularly in that way, Harvey is the show, I guess. ये तो है। कि अगर उस शो से हार्वी को निकाल के, आई गेस गैब्रियल को निकाल के अगर आप किसी और को रखो, तो आई आई वुडंट गो एज फार टू से दैट कि और कोई इतना अच्छा कैरेक्टर नहीं प्ले कर पाएगा, बट गिवन द फैक्ट्स दैट कि हार्वी ने जैसा पायलट पे खुद को, क्योंकि जो ओपनिंग सीन है, वी ऑलरेडी टॉक अबाउट दैट, कि जो वो पोकर गेम से शुरू होता है, हाँ। सो दैट इज हार्वी. आई डोंट प्ले द ऑड्स, आई प्ले द मैन. Yeah, because obviously like talking about Gabriel only because जो जैसा उसने कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है, because it's not even ऐसा भी नहीं कोई एटीट्यूड या फिर कुछ एग्रेशन या फिर कुछ अजीब सा नहीं आता कि भाई ये बंदा कुछ अपने आप में कुछ ज्यादा लाइक ही इज फुल ऑफ हिमसेल्फ और ऐसा कुछ नहीं निकलता मुझे, बस इसलिए इट्स वेरी चार्मिंग एंड लाइक बात भी मेरे को ऐसा लगे काफी अच्छे से उसने कैरी करी है एज अ कैरेक्टर ना, बिकॉज यू स्टिल वांट टू root for this person, right? Yeah. Yeah, I remember there's a line in the show where there's a conversation between Louis and Harvey, कि जहाँ पे लुइस बोलता है कि I am emotional, you are cold, you are loved, I am hated. So that describes a lot about Harvey, I guess, कि despite of being the way he is, he knows how to like charm people or to make up with people he loves, actually he cares about. Yeah, I mean And to be obviously admired that profoundly among his colleagues and everyone, that's incredible. Yeah, and obviously because as he says a lot of the times in the show, like I know how to read people, that like that's his job, right?
Yeah. Like another person in the show who Basic. knows how to read people is obviously Donna. Yeah. We can't get off the hook without Donna, right? Donna is such an important character of the show. Yeah. So during the whole show, Donna was only about knowing people, right? Ki I know what you want, I know what are you gonna do or something like that. हाँ मतलब उसका character arc यही था that she can predict like people and she's like very thorough with everybody. Like before you joined this meeting, I was just like thinking about what was the character's name in like Mad Men, Christina Hendricks. So I was like, oh, okay, Joan Holloway. तो I'm like दोनों Yeah. जगह रेड हेड सेक्रेटरीज हैं ठीक है ये थोड़ा स्टीरियोटाइप है क्या अमेरिकन शोज में? रेड हेड सेक्रेटरीज हाँ Yeah, redhead secretaries and like ऐसा strong firm protagonist की जो भी, और दोनों काइंड ऑफ अगर मैडमैन और सूट्स को इस पॉइंट पे कंपेयर करे तो दोनों डॉन ड्रेपर और हार्वी स्पेक्टर शुरू में अपने फर्म के लीडर्स होते नहीं है. हाँ They're basically into doing what they are best at, right? yeah. तो काइंड ऑफ बहुत सारे न्यूयॉर्क बेस्ड और अमेरिका लाइक इन जनरल अगर मैं अमेरिका बेस्ड शोज की बात करूँ तो सेटअप काफी सिमिलर होता है. ये तो है. एंड ऑफ कोर्स रेड हेड सेक्रेटरीज. बट लाइक अगर ऐसे ही कंपैरिजन करें, आई थिंक हार्वी एंड डॉन आर लाइक वाइल्डली डिफरेंट पीपल. लाइक opposite में अगर कह सकूं, like obviously they're very good at what they do, but like Don Draper is not at all by the book. Like he's combined with Mike Ross का plot obviously कि वो है नहीं जो वो कह रहा है. exactly yeah. He's like so उसका ये ऐसा है ना कि डॉन ड्रेपर के ऊपर बहुत सारे लेयर्स है. तो वो जब कुछ कहता है तो आपको पता नहीं चल रहा है कि वो कौन सा लेयर उतार के आपको दे रहा है, क्योंकि आप कभी कोर तक तो देख ही नहीं सकते उस कैरेक्टर के. तो क्या पता नहीं क्या राइटिंग है उस शो की. आई डोंट थिंक कि अगर कुछ ऐसे जॉनर में जहाँ पे क्रिएटिव प्रोफेशन के पीछे कोई शोज लिखे गए हो, आई गेस मैडमैन इज ऑन द टॉप ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ राइटिंग. या एज अ मेरे को लगता है कंपैरिजन ही इसी वजह से होता है इन दोनों शोज का, बिकॉज प्लॉट काफी हद तक सिमिलर है इनिशियली एंड पूरा ये फर्म है ये वो है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट राइटिंग ना, बिकॉज काफी डिफरेंट चीज है. बिकॉज जैसे मैडमैन की जैसे हम बात करें, इट्स नॉट अबाउट एडवर्टाइजिंग राइट, इट्स अबाउट अ पीरियड ड्रामा कि 1960s में लोग कैसे थे. लाइक वो पूरे अमेरिका को दिखाया गया है कि 1960s में अमेरिका कैसा था. कि also 1960s is the part where the American dream kinds of dies, you know, and people are trying to restructure America with new ideology and everything. So उस वे में राइटिंग बहुत ही लाजवाब है उस शो की. या और जहां तक हम सूट्स की बात करें, सूट्स इज अबाउट कॉर्पोरेट लॉ ड्रामा. एग्जैक्टली. डिटेल्स में जो ऐसा पता चली ना कि अच्छा लॉयर्स को ये भी करना है वो भी करना है. आई मीन दैट वाज अमेजिंग टू वॉच इन द शो. या एंड बेसिकली सूट्स में ये होता है कि आपको ये पता है कि लॉ को एज अ पार्ट ऑफ द शो नहीं दिखाया है, लॉ को पूरा शो दिखाया गया है. हाँ, हाईलाइट किया गया पूरा कि लॉ में क्या इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट्स के साथ कब कैसे बात करना है, नेगोशिएशन, वो सारा ही एस्पेक्ट. क्योंकि वो खुद में ही वो एस्पेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है, तो आई डोंट थिंक कि उनके पास कुछ और उनको जरूरत भी थी किसी और ऑफ ट्रैक होके कहीं और जाने की शो में. बट ये चीज है कि जस्ट लाइक अमेरिकन शोज जैसे ग्रेज एनाटॉमी हो गया, हाउस हो गया, देयर ऑल लाइक डॉक्टर्स राइट. अच्छा मेडिकल प्रोफेशन में कैसा है. देन ब्रुकलिन 99 हो गया, उसमें इट्स अबाउट पुलिस. तो पुलिस तो ऐसे कोई भी एक प्रोफेशन पकड़ के ये लोग ऐसे शोज बना देते जस्ट अबाउट द प्रोफेशन. एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू लाइक जो लॉयर्स हैं ये शो में भी देखता हूँ. लाइक आई जस्ट इंटरेक्टेड विद जस्ट वन पर्सन लाइक हु इज करेंटली स्टडीइंग लॉ. सो ही सेड टू मी कि काफी कुछ गलत किया इन लोगों ने शो में और ऐसा हो नहीं सकता है. तो मुझे बोला ऑब्वियसली क्योंकि क्रिएटिव लिबर्टी है. या
तो आई रिमेम्बर कि ऐसा होता है ना जब हम किसी शो को खत्म कर लेते हैं, like you're binge watching the show basically, right? So when you finish the show, you have particularly characters in your heads and you go on Wikipedia and read about them and go on YouTube and watch fan videos about that. Yeah. So I remember watching कि किसी ओरिजिनल लॉयर ने एक YouTube पे वीडियो बनाई थी कि सूट्स में क्या क्या रॉन्ग है. मतलब मेरे पास लगता है सूट्स पे काफी बहुत ज्यादा कैमियोज आए हैं. आई थिंक जो भी मतलब किसी को भी ऐसे वो देखते हैं ना कि हाँ ये बंदा भी आ जाए, वो बंदा भी आ जाए, लाइक फ्रॉम डिफरेंट शोज. मैंने कहीं तो ऐसा ना पढ़ा था या कुछ तो वीडियो देखा था कि ना सूट्स जब निकला था तो आई गेस जो क्रिएटर है शो का, वो इज द फर्स्ट टाइम शो रनर, तो उसको इतना लोग पहचानते नहीं थे या उसकी स्टार कास्ट इतनी ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं थी. बट एज द शो लाइक प्रोग्रेस्ड, बहुत लोगों को पसंद आने लगा. सिमिलरली माइकल फेल्प्स भी उसी से आया. और जितने भी कैमियोज है आई गेस कि उनको ऐसा था कि मेरे को हाँ एक बार शो पे दिखा दो, मेरे को यहाँ पे आके एक्टिंग करना है. ये तो है. हाँ, इसीलिए बोले कि हाँ तेरे को आना है तू भी आजा, तेरे को आना है तू भी आजा आजा. हमारे पास ऐसे भी स्टोरी लाइन पे कमी है, तू आजा. एंड इजी भी तो है ना, बिकॉज यू वांट टू ब्रिंग इन क्लाइंट्स. तो ऐसा नहीं कि जैसे नॉर्मली सिटकॉम्स में क्या होता है कि 4-5 लोगों पे जबरदस्ती सेंट्रिक प्लग इन होता है करते ना, हैं. जबरदस्ती करते हैं. आई रिमेम्बर फ्रेंड्स में काफी लोगों को जबरदस्ती प्लग इन किया उन्होंने. लाइक जूलिया रॉबर्ट्स वाज विद चैंडलर इन द शो. लाइक कि ये बस कैमियो पे नाम पे ये लोग ले आए. ब्रैड पिट, उसकी क्या जरूरत थी वहां पे. जेनिफर एनिस्टन के साथ. हाँ. या वो वही तो, वो शो की टीआरपी. ये ना हमारा बस एक परसेप्शन है कि इंडियन मीडिया इंडस्ट्री में ही हम टीआरपी के लिए काम करते हैं. बेसिकली एवरी मीडिया इंडस्ट्री वर्क्स लाइक दैट. स्कैंडल्स चाहिए उनको, टीआरपी चाहिए, वो एग्जैक्टली कोलैबोरेशंस चाहिए. हाँ हाँ. तो हाँ मतलब ये तो बहुत ज्यादा. इवन लाइक दिस गाय हु प्लेज जेफ मेलोन, लाइक जेसिका पियर्सन का जो लव इंटरेस्ट होता है. या तो उसने बहुत हैंडी कैमियो किया है उस शो में, सूट्स में एग्जैक्टली. तो काफी सही था उसका कैमियो. हाँ, तो ही वाज इन लूसिफर. ये ऐसा है क्या, मतलब मेरे को एज अ जनरल यू वॉच अ लार्ज नंबर ऑफ शोज कि अमेरिका में ऐसा है कि बहुत सारे कैमियोज होते हैं लोगों की, लाइक कि वो जस्ट कोलैबोरेशन करने के लिए, क्योंकि आई हैव सीन शो में छोटा सा एक कैमियो करके गया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कोलैबोरेशन और समथिंग लाइक दैट. तो ये अमेरिका में ये ट्रेंड है या जो भी है, बहुत अच्छा है आई गेस. बिकॉज वही बात है ना, लोग जानते हैं उसको, एक बंदे को दूसरे शो से. अच्छा, एक मेरे को कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करनी थी विच वाज अबाउट लाइक, ये शो में भी काफी इतना दिखाया उन्होंने, नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है. ओके. तो लाइक कितना मतलब वो ऐसा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इवन इफ यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ना, आप मतलब कॉम्पिटेंट बहुत ज्यादा हो, बट लाइक हार्वी, लाइक इवन लाइक फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड ही इज लाइक, वो जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस होता है फर्स्ट एपिसोड में, एंड जो बंदा जिसको वो स्यू कर रहे होते हैं, दिस पर्सन ही गोज लाइक अच्छा मैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को जानता हूँ, लाइक मैं उसकी शादी में गया था, एंड देन ही शोज द फोटोग्राफ्स. तो इट लाइक बिकॉज ही नोज अ लॉट ऑफ पीपल, राइट, हार्वी. तो वो कनेक्शंस बिल्ड करना, आई थिंक लाइक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? तो बेसिकली नेटवर्किंग आई गेस बहुत ज्यादा उसको हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते हर टर्म पे, क्योंकि लोग जितना शो पे जनरलाइज करके दिखाया गया है, आई डोंट थिंक कि लॉ में या किसी भी और प्रोफेशन में ऐसे काम करता है नेटवर्किंग, क्योंकि इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, राइट. क्योंकि हम लोग शो में भी देखते थे कि अगर किसी का किसी पे कोई उधार है तो ही उसको कोई कुछ काम करके दे रहा है. हाँ ये तो है. That basically works both ways. And I think कि networking is very very important in every sector of life, क्योंकि be it in business or be it in any professional environment like law firms and chartered accountant firms or any doctors हो गया, so you have to have good network to like get people to talk about or rescue you from certain situations. तो नेटवर्किंग वैसे तो काफी इफेक्टिव है. बाकी अगर बहुत ही फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो
I've been seeing videos lately कि लोग जिस पे मोटिवेशनल स्पीकर्स इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स बात करते हैं कि अगर आपका खुद का काम इतना कॉम्पिटेंट है और अगर आपको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है तो आपको वैसे इवेंचुअली लोग मिलते जाते हैं। हाँ तो उस पे मेरा काफी ज्यादा, मैं उस चीज पे मानता हूँ क्योंकि मैं खुद को एज अ पर्सनल ह्यूमन बीइंग देखूं तो मैं ज्यादा नेटवर्किंग पे बिलीव नहीं करता। मेरे को ऐसा लगता है कि जो जब मिला है उसको हम्म उस टाइम पे चार्म कर, अगर तुम कर सकते हो तो। और हम्म इवेंचुअली किसी को अप्रोच करके कि आउट ऑफ द वे जाके अप्रोच करना किसी को, जब तक कोई वैसा काम नहीं होता जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेटवर्किंग, आई डोंट बिलीव इन दैट। आई मीन आउट ऑफ द वे नहीं, बट इट्स लाइक कि आपने किसी के साथ काम भी करा हुआ है लाइक पास्ट में भी, तो जस्ट एग्जैक्टली, लाइक टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप तो। या यू हैव टू बी अ सोशल बटरफ्लाई क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर शो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हार्वी स्पेक्टर वाज काइंड ऑफ, मतलब वो काफी ऐसा पर्सनल स्पेस पे रहने वाला इंसान दिखाया गया है कि खुद के अपार्टमेंट पे किसी को आने नहीं देता या खुद के पर्सनल लाइफ पे आने नहीं देता, बट वो काइंड ऑफ सोशल बटरफ्लाई था क्योंकि वो या हर बट कभी हाँ, क्योंकि बिकॉज उसने काफी ऐसे लाइक ही हैज डन स्टफ टू या चार्म पीपल, कि वो मतलब वो चीज ही यूज्ड टू ट्रीट दैट एज वर्क एज वेल। एग्जैक्टली वो उसका तो यही फंडा था ना कि किसी इंसान से एक बार मिल लो तो उसको सामने वाला कभी आपको भूलना नहीं चाहिए। हाँ तो हाँ वो जो हाँ। एनिग्मेटिक पर्सनैलिटी थी ना उसकी, तो वो हम्म। लास्टिंग एक इम्प्रेशन बना के छोड़ जाता था इंसानों पे। कि ऐसा मेरे साथ होता है, ये काफी बुरा रहेगा शायद यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बोलना कि मेरे को कॉलेज छोड़े हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, जैसे 1 साल हुआ है मेरे को कॉलेज छोड़ा हुआ, मैं काफी लोगों को भूलने लगा हूँ क्योंकि हाँ। उनका लास्टिंग इम्प्रेशन था नहीं मेरे पे। और सेम गोज विद समवन हु नोज मी ऑल्सो, वो भी मेरे को भूलने लगे होंगे। हम्म। तो इट वर्क्स दैट वे आई गेस कि अगर किसी इंसान से प्रोफेशनली जब आप किसी काम पे मिल रहे हो फॉर अ वेरी शॉर्ट कोलैबोरेशन और समथिंग, यू हाँ, नीड टू हैव अ वेरी लास्टिंग इम्प्रेशन। that is very true. And as I'm just reiterating through this entire episode, जो पूरा पायलट में भी उसने, because there is this like काफी ध्यान से देखा मैंने अभी पायलट, because after watching the whole series ना, I was like कि चलो देखते हैं क्या चीज है, and I just made notes of this. So as we're talking about lasting impressions and everything, so there is this scene where Mike Cross has to like host a dinner for the associates ना. या सो या लाइक हार्वी से वो बात कर रहा था, इसलिए कि स्टूपिड सा डिनर है क्या, मतलब ये फालतू काम पकड़ा दिया मेरे को, एंड इसलिए कि वो बंदा जो फैक्स मशीन पे खड़ा है उसको देख, वो बंदा कभी पार्टनर बनेगा नहीं, बिकॉज उसको आता भी हो ना। इट्स लाइक यू हैव टू बी वो लाइक फर्स्ट इंप्रेशंस लास्ट, लाइक दैट्स व्हाट ही सेज। एंड एग्जैक्टली। और इनके प्रोफेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है ना कि कोई कोई इंसान है, कोई अपनी कंपनी की इतने बड़ी बड़ी डील्स आपके हाथों में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, तो ही नीड्स टू सी समथिंग इन यू, राइट? हम्म। तो लॉयर एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे सिर्फ आपके कॉम्पिटेंस से काम नहीं होता है। हाँ तो यू नीड टू बी दैट सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी जिसको पता है कि हाँ मेरे को पता भी है बुक्स में कैसे है और मेरे को पता भी है कि रियल लाइफ में लोगों को हैंडल कैसे करना हाँ, लाइक पीपल पर्सन होना, एंड देन हाउ टू प्ले देम, दोनों हैंड टू हैंड लाइक साथ साथ में चलते हैं ये सारी है। बातें। एग्जैक्टली। So that is like very interesting about this show, जो जैसे उन्होंने दिखाया है, बिकॉज एक तो डायलॉग जो राइटिंग है वो काफी एकदम टू द पॉइंट है और मजा आता है देखने में। मेरे को ऐसा कभी कभी ना देख के लगता था कि ये इंसान सोच के कैसे लिख सकता है। लाइक तेरे पास पेपर है, तेरे पास पेन है, वी हैव बीन को-राइटर्स इन प्लेज टुगेदर इन हाँ कॉलेज, राइट? या तो वी लाइक व्हेन वी यूज्ड टू सिट डाउन टू राइट डायलॉग्स, हम बस सिचुएशन इमेजिन करके बस एक दूसरे से बात करते थे। तो आई नो हाँ कि जनरल राइटिंग डायलॉग का भी यही होता है कि आप बात करते हो बट टू द पॉइंट, क्योंकि कई बार ऐसी ऐसी लाइनें होती है ना जब आपको ऐसा लगता है कि ये तो इंसान जब एकदम इन द मोमेंट सोचेगा। होता है ना तभी हाँ तभी सोचेगा यार ये आउट ऑफ नोवेयर आना पड़ेगा, बट इतना सोच के ये शो लिखा गया है इन टर्म्स ऑफ डायलॉग, इट्स लाइक सुपर्ब। ये तो मेरे को काफी लाइक दिस इज, चलो
एज अ डायलॉग राइटिंग आई वोंट से कि दिस इज एन अमेरिकन थिंग, बट मैंने काफी से जितने भी जैसे शोज देखे हैं, इट्स वेरी कि मतलब कहीं ना कहीं से ना वो चाइल्डहुड में या फिर कुछ भी पास्ट में कुछ ऐसे पार्टी वार्टी में कुछ भी हुआ, वो स्टोरी उठा के रिलेट करके प्रेजेंट सिचुएशन में बोल के, और पता ही नहीं चलता कहाँ से रिलेशन वो लेकर आ गए। तो इट्स लाइक बंदा, मैं अगर किसी से नॉर्मली बात करूं, मैं इतना सोच के बोलती ही नहीं तो वो एग्जैक्टली वही बात है, क्योंकि हमारी बातों को इतना कोई स्क्रूटनाइज नहीं करता ना। हाँ, इन जनरल टर्म्स व्हेन पीपल मूव अप द लैडर इन देयर लाइफ, वो काफी सोच के बोलने लगते हैं आई गेस फिर। हाँ, पर जैसे माइक्रोस का कैरेक्टर है तो मतलब like he doesn't know things but he also has like killer dialogues. या ही हैज किलर डायलॉग्स एंड वो पूरा वो मतलब पूरा बंदा ना, बैंटर जैसे उन्होंने पूरा फ्रेम किया है ना, इट डजंट सीम लाइक अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। कभी भी जो भी कॉन्वर्सेशन उनकी हो रही होती है, लाइक एवरी कैरेक्टर हैज देयर ओन थिंग। या और इसीलिए ना मेरे को कई बार शो में लगा कि ये बहुत नेचुरल सा नहीं लगा। मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ ये तो लिखा गया है, ये बस एक्सचेंज कर रहे हैं डायलॉग्स को। हाँ, ये भी बात है। आई थिंक क्योंकि ये चीज बोरिंग भी हो जाती है टू थोड़े पॉइंट के बाद, लाइक कि फिर वही चीज ही डायलॉग, फिर वही चीज बोल दी उसने, है हाँ ना। हाँ हाँ, और कई बार तक प्रिडिक्टेबल हो जाता है ना कि अब तो कुछ स्नॉबिश सा डायलॉग आएगा, ये होगा, फिर लुइस लिट ऐसे थोड़ा सा घबरा जाएगा, हार्वी फिर तो उसको धमका देगा। तो वो काफी वैसा एक सेटअप बन गया है पूरा। बट जैसे जैसे शो देखते जाते हैं उस चीज की आदत पड़ जाती है, इसलिए हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते उस चीज को। हम्म। बट हाँ कि इन टर्म्स ऑफ डायलॉग एक्सचेंज पूरे शो में एक्टिंग और परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे मतलब नेचुरल नहीं लगता काफी हद तक। हाँ, एंड जैसे ये चीज जैसे बोली ना कि नेचुरल नहीं लगता या फिर लाइक थोड़ा सेटअप है, आई थिंक फिर वंस एज अ शो राइटर लाइक यू मेक अ टेम्पलेट कि ये चीज तो एटलीस्ट एपिसोड में होने वाली है, इट हेल्प्स यू टू मेक अ लॉट ऑफ एपिसोड्स। तभी मतलब इन 9 सीजन के लिए शो चल गया बेस्ड ऑन द टेम्पलेट दैट इव मेड। तो हम जो भी बातें कर रहे हैं, इट्स वेरी लाइक रेवलेशन सा लग रहा है बात करने में कि ओह हमने कुछ क्रैक कर दिया, लाइक द फॉर्मूला ऑफ मेकिंग दिस शो ना। हाँ 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 हाँ, हम सारे ऐसे एलिमेंट्स को ऐसे डाइसेक्ट कर रहे हैं कि हाँ यार ये तो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। टेम्पलेट Because पे शो लिखना पड़ता this is not what I meant is about. Like to, है। go into subtext of TV shows. And it's very टीवी fun. शोज राइट। या कि मैंने भी ना कभी इस पर्सपेक्टिव से किसी शो के बारे में देखा नहीं हाँ। कि मतलब कि अभी जैसे तूने बोला ना कि अगर कोई सेट टेम्पलेट नहीं हो या किसी दिमाग में सेट नहीं हो तो वो बंदा 9 सीजन तक कैसे चलाएगा? 9 सालों तक किसी शो को चलाना बहुत बड़ी बात है। हाँ। एंड टू बी ऑन द टॉप ऑफ रेटिंग्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव कट थ्रोट मार्केट है इन टर्म्स ऑफ हम्म। कंटेंट। तो हाँ। ये काफी काफी ऐसे अच्छी चीज है जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, कि मतलब टेम्पलेट बनाओ। इवन बिकॉज अभी जैसे लोग कंटेंट क्रिएशन में जाते हैं, यू वुड हैव सीन कि जो भी तुम फॉलो करते हो जिस लोगों को, दे हैव सम कैरेक्टर्स या कुछ भी वो स्टाइल बनाते हैं तो वैसे टाइप का ही रहता है उनका थोड़े टाइम तक, देन दे टेक अनदर टाइप ऑब्वियसली। बट एक वो टेम्पलेट बनाना काफी इंपॉर्टेंट है, वो हमें काफी माइक्रो सेंस में हम देख रहे हैं ये चीज विद लाइक शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट, 15 सेकंड या 60 सेकंड्स में जो भी हो रहा है। हम्म। सो वही चीज, अब ये 1 घंटे का एपिसोड है, उसमें भी हर एक एपिसोड में सिमिलर एलिमेंट्स रहेंगे ही रहेंगे यार, बिसाइड्स योर कैरेक्टर्स ऑब्वियसली। ऑब्वियसली या हु डू यू थिंक वाज द विलन ऑफ द शो? लाइक इनिशियली देखते समय व्हाट डू यू थिंक कि मतलब कुछ ऐसा लगा कि कुछ ये बंदा कुछ आगे जाके कुछ गड़बड़ करने वाला है? मेरे को पता नहीं क्यों जब आई वाज वाचिंग द पायलट ना मेरे को जेसिका वैसी सी लगती थी मेरे कि को भी। हाँ कि शी इज रनिंग द होल बिजनेस राइट, हाँ। एंड शी इज मतलब हैव टू एडमिट कि वो मेरी हार्वी स्पेक्टर है ऑब्वियसली, बट शी इज द फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम द शो फॉर मी। ओह सो स्ट्रांग ओके, मतलब। सो स्ट्रॉन्ग। एंड मैंने पता नहीं कहीं तो कहीं सुना था, वही जैसे विकिपीडिया पे पढ़ते रहते हैं ना जब शो खत्म करके, कि जो हम्म। जेसिका पियर्सन का एक्चुअल कैरेक्टर था वो मेल होने की बात थी, हाँ हाँ, मेल आई को रेड दिस कास्ट टू। करने की बात थी। हम्म। या तो उसको जब कास्ट किया तो वो जब शुरू पायलट में उसको दिखाते हैं कि तब उसको वैसे इतना वैसे अपने केसेस के थ्रू उसको अपना पोटेंशियल दिखाने का मौका नहीं मिलता पूरे शो में,
कि जैसे हार्वी जाके केसेस जीत रहे, लुइस जाके केसेस जीत रहे, माइक जाके केसेस जीत रहे, उसको उस हिसाब से मौका नहीं मिलता. बट द वे शी इज मैनेजिंग द फर्म, और जो एक मैनेजिंग पार्टनर होने का उसने जो रोल निभाया है, तो आई थिंक दैट्स बियॉन्ड व्हाट आई वुड से, कि कोई एडजेक्टिव बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग वुमन के लिए ऐसा यूज करने वाला क्या हो सकता है. तो क्या उस वजह से लगा कि विलन है, बट व्हाट वाज द रीजन दैट यू थिंक कि ये कुछ गड़बड़ होने वाली है? हाँ, कुछ गड़बड़ होने वाली है कि वो ना बहुत ऐसे अपने पत्ते अपने तक रखने वाली औरत दिखाई गई है पूरे शो में. वो लाइक कि उसको पता है कि ये हार्वी है, ये लुइस है, ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है. तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये बाद में ना ये अपने काम हो जाने के बाद लोगों को यूज करके फेंक देने वाले लोगों में से है. कि वो जो टिपिकल अमेरिकन वे है इन टर्म्स ऑफ डूइंग देयर जॉब, की एक बार किसी से काम खत्म हो गया तो अब तुम्हारी जरूरत नहीं है. बट इन द लॉन्ग टर्म ऐसा समझ में आता है कि वही है जो एक ग्लू की तरह पूरे चीज को पकड़े हुए है. तो ये भी वो बात है. जेसिका का कैरेक्टर आई गेस इज द मोस्ट ब्रिलियंटली रिटन कैरेक्टर इन द शो. एंड मेरे को पर्सनली बहुत बुरा लगा था जब वो शो से चले जाती है. हाँ, मेरे को भी लाइक अच्छा, इतना अच्छा नहीं लगा. बट ओरिजिनली they were gonna murder her character. क्या? Yeah, they were gonna murder her character, but then they decided just to send her to Chicago instead. Speaking of female characters, obviously we need to talk about the Duchess. Yeah, Meghan Markle. Like I'm just laughing because थोड़ा वो लगता है ना कि when you're watching the show, even like when I watched the show, I knew कि ये बंदी like she's like married Royal. Prince Harry, like she's royalty and stuff. And जब मैं show देख रही हूँ like ये थोड़ा jarring सा लगता है देखने में, like हो क्या. तो शो देखते समय like you have obviously watched the show after she was married to Prince Harry, right? Yes. तो वो कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब देखते समय कि उसको पैरालीगल ये कर जाके ये रिसर्च कर वो कर उसको लोग I भगा mean, रहे थे, बट इन रियल लाइफ यू कांट इमेजिन दैट, राइट? okay, so I'll tell you what happened now. So I follow like Daily Mail on Snapchat, and they used to post so many tabloids कि ये बंदी मतलब अलग कर रही है हैरी को फैमिली से. like whatever happened in the royal family, that's a different business, but just type का उसको portray किया है in like the news. And then I was watching the show, I was kind of like matching up all the traits जो भी वो बताना चाहते कि बंदी बस like she gets what she wants and पूरा like she's after success और वो सब. तो I'm like मैं actually ठीक है, एक्ट्रेस है, रोल है, कर रही है. तो I'm like मैं पढ़ने की कोशिश करी कि ये बंदी का एसेंस है क्या, बिकॉज like है तो वो शो पे 7 सीजन के लिए ना, so I can just like see what is happening or what kind of person she is. कि वो क्या वो hint आ रहा है कि like is she what they are telling us like in the news, right? They're trying to draw a line between that and this. हाँ, तो I'm like मैं देख रही हूँ, मतलब कुछ hint है या कुछ है, like is there any relation, क्या वो पता चल रहा है उस बात का कि अच्छा maybe she can do this or she can like ऐसे ना. ये काफी क्या बोलूं मैं, उल्टा तरीका है सोचने का तेरा. पर बस लाइक वो मैं ऐसा नहीं कि जानबूझ के कर रही हूँ, बट मुझे उसमें देख रही तो थोड़ा मन में हमेशा क्वेश्चन आता रहता था कि हाँ मतलब अभी कुछ एम्बिशियस सा किया या ऐसे. हाँ, तभी इसको लेके हाँ, प्रिंस हैरी को बोल रहे हैं कि मुझे नहीं रहना तुम्हारी दादी के साथ. समझ रही हूँ मैं करके मैं अमेरिका में रहूंगी. हाँ ठीक है, हाँ दैट मेक्स सेंस. अपना अलग अपार्टमेंट मेरे को, अपना अलग अपार्टमेंट. हाँ, तो मतलब वो आप ऑब्वियसली एक वजह से होते ना कि कैरेक्टर को एक्टर से अलग करते ही हैं लोग, नहीं करते क्योंकि आप देखना शुरू कर देते हैं ना ज्यादा. तो वो वही चीज हो रही थी कि मतलब ठीक है, आई नो कि एक्ट्रेस है, दिमाग में ऐसा आ रहा था हाँ ये रेचल ने शादी करी उसके साथ. बट इट्स लाइक एक्टिंग उसने काफी अच्छी करी शो में, मेरे को ऐसा लगता है. यस. तो तेरे को एज एन कैरेक्टर कैसा लगता है रेचल का पूरे शो में, कि अगर तेरे को बोले कि इसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब करो तो तू कैसे करेगी उसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब? थोड़ा हेजिटेंट एज इन की लाइक शी नोज हर पोटेंशियल बट शी इज नॉट लाइक एबल टू डू समथिंग अबाउट इट, कि मतलब काफी सेल्फ डाउटिंग थोड़ा सा लगा मेरे को. बाकी ऑब्वियसली
as you know कॉम्पिटेंस की बात है, शी इज कॉम्पिटेंट एंड पूरे मेरे को लगता है शो में सारे लोगों को उन्होंने वैसा ही दिखाया, बट ये बात मेरे को थोड़ी सी लगी कि थोड़ा चलो वो वैसा दिखाने के लिए ना, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट एक वो जैसे मेल लीड होता है तो दे वांट सम लाइक फीमेल लीड जिसको वो बचाए या कुछ करे, तो आई थिंक उस सेंस से उसको वो एक जो पोजीशन भी क्या सॉफ्ट था। टारगेट रखते हैं ना पूरे शो में, मेरे को लगा है ना उसको रेचल को ऐसा बना के रखा है, क्योंकि पूरे सेक्सुअलाइज शो किया है में ना उसको वैसे। हाँ हाँ हाँ, अगर पूरे शो में देखो तो कि कोई कुछ बड़ा अचीव कर लेने के बाद उसके मन में उतनी एक्साइटमेंट नहीं होती थी जितना रेचल के होती थी। कि सपोज लुइस के साथ अपना अगर सैलरी हाइक करने की बात हो गई तो वो रूम से निकल के वो आई हैव डन दिस ऐसा टाइप का। हाँ तो इन टर्म्स ऑफ दैट कि उसको वैसे थोड़ा सा दिखाया है कि हाँ कि मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं नहीं, मैं बनने की कोशिश कर रही हूँ, तो वैसे टाइप का दिखाया है उसको। तो लाइक वो पूरे शो के जैसे कैरेक्टर्स का टेम्पलेट है वैसे में फिट नहीं होती रेचल एग्जैक्टली। ये तो है। थोड़ा मतलब जस्ट सेल्फ डाउटिंग वाली जो चीज है ना, आई थिंक दैट इज फिर बिकॉज दे वांटेड टू शो कि अच्छा माइक क्रॉस आएगा और उसको इंकरेज करेगा, लाइक द सेम ट्रोप है, तो वैसे भी 2011 का शो ना, सो इट मेक्स सेंस। ये मेरे को ऐसे भी तेरे से इस चीज के बारे में बात करनी थी कि तेरे को क्या लगता है कि इन टर्म्स ऑफ टाइम की अगर हम टाइम पीरियड को अगर बांटे, जैसे हमने मैडमैन 1960 के पीरियड पे, उसके बाद सूट्स 2011 ऐसे टाइम फ्रेम पे, तो आज की अगर हम बात करें 2021 जहाँ पे बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत सब्जेक्टिवली बात होती है, ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जाता, मतलब हम छोटे से छोटे चीजों को निकाल के बात करते हैं उसके ऊपर कि भाई ऐसे नहीं बोलना इस चीज के बारे में, कि इस चीज के बारे में सीख लो। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज द टाइम पीरियड टू जस्टिफाई समथिंग यू आर शोइंग ऑन द शो, बिकॉज कई सारे क्लीशेज होते हैं शोज में या बहुत सारे शोज में होते हैं जो वो उस टाइम पीरियड को पार कर चुके होते हैं, बट फिर भी वो क्लीशेज के साथ हैंग ऑन होके रहते हैं। तो इसके बारे में क्या सोचना है? आई थिंक ये जो टाइम पीरियड वाली बात है, आई लाइक एग्जाम्पल इस चीज का, आई थिंक द ऑफिस, एंड लाइक लोग ऐसे बोलते हैं कि ऑफिस जो जैसा शो है, इट वुडंट यू नो गेट द ग्रीन लाइट टू बी अ शो अभी अगर वो लॉन्च होता, एंड इट वाज ओनली बिकॉज जो राइटर्स हैं शो के, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर, ऑब्वियसली उनका काम है तो इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ओपिनियंस एंड व्हाट दे वांट टू शो, राइट? तो from a time period के जैसे अगर हम बात करें, like if that show was created like somewhere around 2006 or something, तो तब क्या उन्होंने जैसा भी दिखाया, इट्स बिकॉज वो उस टाइम पीरियड में थे, एंड आई गेस जो भी लाइक कॉमन परसेप्शन रहता है, बिकॉज आप चाहते हो आपका कंटेंट सबसे ज्यादा कंज्यूम हो, राइट? तो एग्जैक्टली आप वही बात करोगे जो लोग सुनना चाहते हैं, या फिर व्हाट वुड लाइक शॉक देम और सरप्राइज देम, है ना? तो उस हिसाब से आई गेस टाइम पीरियड मैटर करता है। अबाउट क्लीशेज ना, सो लाइक दिस शो वाज PG-13, राइट? बिकॉज कहीं पे भी उन्होंने कुछ भी वैसे टाइप के कस वर्ड्स नहीं कहे जो भी उनको ब्लीप आउट करने पड़े। हाँ, तो उस सेंस में लाइक वो ऐसे जो राइटिंग उन्होंने लिखी हुई है, आई वाज लाइक जब पहली बारी मैंने ये शो देखा था मेरे को लगा कि जेसिका मतलब हर एक उसके जितने भी डायलॉग है, शी लाइक गॉड डैम डू दिस, गॉड डैम केस, गॉड डैम ये, लाइक कि हर बात पे ये लोग गॉड डैम बहुत ज्यादा थ्रो कर रहे, बेसिकली सब्स्टिट्यूट था फक का। It's like do this fucking job, like no, do this goddamn job. मेरे को ऐसा शुरू में ऐसा जब मैं शो देख रहा था तो मेरे को लगता था कि ये लॉयर लाइब्रेरी में ये रहता है कि मतलब कन्वर्सेशन लाइब्रेरी में गॉडडैम तो है ही है कि किसी भी चीज के ऊपर एम्फसाइज, तो मेरे दिमाग में पहले ये चीज नहीं आई थी कि उन लोग यूज नहीं कर सकते थे कस वर्ड्स। हाँ, क्योंकि मैं अकस्टम्ड हो गया था। अभी जैसे तूने बताया कि PG-13 शो था तो उनके पास वो लिबर्टी नहीं थी यूज करने की, तो उसके वजह से मैंने कभी इस चीज पे सोचा नहीं, बट मैं ऐसे ऑब्वियसली सोचता था कि यार हर लाइन पे गॉड डैम है या हर चीज पे एम्फसाइज करने के लिए ये वाला वर्ब यूज कर रहे हैं, कोई दूसरा इनको वर्ब ही नहीं मिल रहा क्या? तो कई जगह मतलब ऐसा देखा है, बिकॉज लाइक सुपर एडल्ट शोज होते हैं एंड देन दे डोंट यूज वर्ड्स जो एडल्ट लोग यूज करते हैं, तो थोड़ा अजीब लगता है। बट देन आई एम आल्सो लाइक कि यू आर इन अ प्रोफेशनल वर्क प्लेस नाउ, क्या ओके लाइक aside from like creative liberty कि वो ऐसा बोल नहीं सकते, but do you think like corporate और फिर like जो बहुत ही professional लोग होते हैं, do they actually use swear words? All the time because I worked in a
professional area for like what 3 months recently, and मतलब हमें बताया जाता है ना कि कॉर्पोरेट में ऐसे खुद को मेंटेन करना है, ये फॉर्मल्स पहनने, शूज क्लीन करना है, ये करना है, वो करना है, बातों में ऐसे मिठास होनी चाहिए, बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता. When the situation is very adverse, तब लोगों के रियल कैरेक्टर्स निकल के आते हैं. वहां पे कोई किसी को जज नहीं कर रहा होता आपकी वोकैबुलरी पे या आपकी शब्दावली पे कि आप कैसे टाइप की भाषा की प्रयोग कर रहे हो. तो जब ये छोटे से कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट जहाँ पे इतना प्रेशर नहीं होता, तो वहां पे जब मरने लिखने की बात है लोगों की, जहाँ पे डील क्लोज हो रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा होता है प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स में. आई थिंक कि पीपल कस ऑल द टाइम. ऐसा भी होता है तो कहीं के एथिक्स पे लिखा हुआ रहता है कि यू कांट कर्स और समथिंग लाइक दैट. आज के टाइम पे भी ये बात बहुत ज्यादा डिपेंड करती है. हमने बात कि कौन कब उठा के आपके ऊपर हैरेसमेंट का केस कर दे, या वो पापा पापा गाली दिया उसने. ये तो बात है, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे एक तो कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने बता दिया एंड उसके बाद लाइक आप सोचते हो कि अच्छा इनफॉर्मल सेटिंग है, सो यू जस्ट लाइक स्टिल हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर पुटिंग आउट. Basically the gist of everything we have been wanting to like know ki like do people cuss in real life or in professional situations. I really think they do. हाँ, तो then that makes it weird ना कि ये लोग नहीं कर रहे cuss. Last, like the thing that I wanted to talk about was Louis and Harvey's relationship. Like there's a lot of relationships going on, but my favorite one to like explore was there because ये end तक कुछ ना कुछ होता रहता था उनके साथ. Yeah. So what is your opinion on that? मैं उन दोनों के रिलेशनशिप को ऐसे छोटे से अगर सम अप करना चाहूँ ना, तो ऐसे नहीं होते कि तो एक बड़ा भाई होता है, एक छोटा भाई होता है, और कई केसेस में जुड़वे भाई होते हैं, जहाँ हर चीज की अपॉर्चुनिटी आपके पास सेम होती है, सब कुछ सेम होता है, बट कोई एक, एंड इट वाज नेवर फ्रॉम लुइस's पॉइंट ऑफ व्यू कि वो हार्वी को पसंद नहीं करता था. उसको एनी टाइम अप्रूवल चाहिए होती थी हार्वी की कि हार्वी में की. और मेरे को वो वाला सीन याद आ रहा है जब वो अपने डिक्टाफोन पे वो बोलता है कि यू आर द मैन, ऐसा करके. हाँ, and then he repeats that so many times. वो एक वो प्लेजर उसको एक वो हार्वी के अप्रूवल से आता है. एंड व्हाट बेटर कुड बी द एंडिंग ऑफ द शो देन शोइंग कि दोनों के रिलेशनशिप्स के ऐसे कितना अच्छा क्लोजर हो गया, और उसकी शादी पे हार्वी ने शादी कर ली. तो ऐसा उनका रिलेशनशिप काफी कितनी, अगर तेरे को अगर कोई बोले तेरी शादी में अगर कोई सपोज दूसरा तेरा दोस्त आया हुआ है, तो तेरे को कुछ हो गया सपोज, ठीक है, तेरे को हॉस्पिटल लेके गए, तेरा दोस्त बोले कि यार खर्चा बचाने के लिए मैं कर लेता हूँ शादी. I mean, रेडी होना चाहिए साथ में कोई उनके साथ ऑब्वियसली, बट इतने सारे लोग देखने आए हैं तो मतलब कुछ तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए. हाँ, तो एंगेज एंटरटेनमेंट, दैट वाज लाइक वेरी फिल्मी. हाँ, शो को ना लास्ट में मेरे को ऐसा लगता है ना, जितने भी अमेरिकन सिटकॉम्स मैंने, कि लास्ट में एक अच्छा सा क्लोजर देने के लिए ना शो में हमेशा फिल्मी बनाना ही पड़ता है शो को, क्योंकि लोगों का तब तक इमोशन बन गया रहता है. उनको पता है कि शो बंद होने वाला है, लास्ट एपिसोड है ये. हाँ, और ये भी ये चीज है कि आप इतने सारे कैरेक्टर्स के साथ हो, देन आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है उनको लेके, सो यू वांट टू रिजॉल्व ऑल द कैरेक्टर लाइंस इंस्टेड ऑफ लाइक कोई और चीज ना. या ये तो फनी बात है. तो बेसिकली हार्वी और लुइस का रिलेशनशिप मेरे को लगता है बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट भी लुइस की हुई है शो में. ओके. हाँ, इन टर्म्स ऑफ कि उसको बहुत ऐसे नजी सा इंसान कहते थे कि दूसरों की जिंदगी में उसको बहुत ज्यादा ताक झाक है. हम रेचल की बात कर रहे थे कि एक थोड़ा सा काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस वैसा की कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे, बट लुइस के साथ कॉन्फिडेंस वाला प्रॉब्लम नहीं था. उसको पता है कि ही इज द बेस्ट दैट पियर्स एंड हार्डमैन हैव, मतलब विद हार्वी, बट उसको फिर भी ना वो एक जेसिका की और हार्वी की अप्रूवल की हमेशा से जरूरत थी, और माइक आने के बाद माइक की भी जरूरत थी उसको. इट्स लाइक कॉन्फिडेंस, इट्स डिफरेंस की उसको वैलिडेशन चाहिए था, और उसको किसी एक जन से वैलिडेशन, चल हार्वी प्रो मैक्स लेवल पे था,
बट उसको बहुत सारे लोगों से वैलिडेशन चाहिए होती है. Is the kind of person like who seeks validation every time. एंड ये जो चीज है ना अबाउट कैरेक्टर डेवलपमेंट, आई थिंक यू वुड अग्री विद मी ऑन दिस कि अगर फर्स्ट सीजन में उसको पता चलता लाइक कि Mike Ross is not a lawyer, and when he actually found out when Mike Ross wasn't a lawyer, तो एक वो चीज है ना कि how the situation was handled, कि because he wanted to like do later, जब उसको पता चला तब he was like able to handle that situation without telling anybody else कि अच्छा भाई मैं कुछ गड़बड़, obviously threaten करता है वो कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, बट अगर उसको फर्स्ट सीजन में पता चलता he would have outed him बिना किसी को ऐसे बोला. Yeah, definitely. तो वो एक जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट था. काफी अच्छे से पूरे कैरेक्टर डेवलपमेंट को इस चीज ने बहुत अच्छे से सम अप कर दिया है इसकी ना. मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि अगर उसको पहले ही सीजन में अगर पता चल जाता, क्योंकि उसमें भी उसके ड्रग्स टेस्ट हुए, मतलब उसने कोशिश तो पूरी करी कि क्या बोलते हैं उसको थ्रेटन कर. तो अगर उसको पहले सीजन में ही पता चल जाता, बट द कैरेक्टर दैट हैज डेवलप्ड जब उसको बाद में पता चलता है तो वो काफी ऐसे स्टेबल होता है. उसको पता है कि आसपास चीजों में इस चीज पे रिएक्ट कैसे करना है. तो like instead he goes for like threatening कि अच्छा मैं बता दूंगा, but I think first season में he wouldn't have even done that कि वो बोल ही देता है कि भाई ये किसको तूने हायर करा है, निकाल इसको ऐसे करके ना. तो उस सेंस में ये जो पूरा प्लॉट पॉइंट है अबाउट हिम नॉट बीइंग अ लॉयर, तो मतलब ये पूरा शो को जो प्लॉट ड्रिवन शोज होते हैं ना कि यही प्लॉट आप, क्योंकि कुछ भी हो रहा है शो में बिकॉज ऑब्वियसली टेम्पलेट है कि नया केस आएगा कुछ भी होगा, बट दिस पॉइंट इज ऑलवेज देयर एंड यू जस्ट वेटिंग किसको इसको पता चलता है. दैट इज द स्टोरी, दैट मेन स्टोरी दैट यू आर फॉलोइंग, एंड उसके ऊपर बाकी सारी चीजें हैं. मैं वही चीज बोलने वाला था कि जो भी शो का क्रिएटर था ना, उसने बहुत मतलब बहुत ही शातिर तरीके से उसने ना ऐसा प्रिडिक्ट कर लिया कि ना अगर ये शो में से मैं इस प्लॉट को नहीं हटाऊंगा ना तो मेरा शो मरने वाला है. मतलब मैं जितना भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस शो को लंबा चलाने की, तभी मेरे को लगता है कि उसने 5वें या 6ठे सीजन में ये पूरा चीज को अनरिवील किया और ये पूरा चीज के ऊपर उसने बंद करके एक्शन पे लेके गया. वो तब तक भी काफी टाइम हो गया था. हाँ कि कब पता चलेगा, इसको पता चल गया उसको पता चल गया, देन यू जस्ट लाइक वेटिंग. बट देन ये भी चीज थी कि इतने सारे लोगों को पता चल गया, दैट इज व्हाट सबको प्रॉब्लम में ले आए ना ये बात. अगर ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता तो माइक रॉस को काफी इजीली डिस्कार्ड कर सकते थे वो. बट ऐसा अगर रियल लाइफ में हम सोचे तो ऐसा होता नहीं है ना कि अगर तू क्लोज एनवायरनमेंट में है जहाँ पे तू लोगों के साथ काम करती है और तेरा कोई ऐसा सीक्रेट है जो 1-2 लोगों को पता है और जो हर कोई किसी ना किसी के साथ इंटरकनेक्टेड है, तो ऐसा होता नहीं कि इतना बड़ा जो झूठ होता है वो ऐसे इतने टाइम तक दबा हुआ रह सकता. प्रैक्टिकली हाँ, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता. तो आई गेस बट देन ये भी बात है ना, यूर स्टेकिंग, जितने लोगों को भी पता था देयर स्टेकिंग देयर करियर ऑन इट, ये झूठ रखने के लिए. एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि उनको भी कॉन्सिक्वेंसेस लाइक होंगे इस बात के अगर उन्होंने, बिकॉज इट वाज लाइक हर बात पे यही बोल रहे थे ना, इमीडिएटली लोगों को बताना चाहिए और लाइक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कि भाई ये बंदा है ही नहीं लॉयर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. एग्जैक्टली हाँ. तो वो भी बात है, एंड यही चीज कि लुइस इज एबल टू लाइक हैंडल दिस कि भाई मैं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा हूँ, तो दैट इज लाइक अ बिग थिंग फॉर हिज कैरेक्टर एज वेल. काफी फन कैरेक्टर है लुइस. एग्जैक्टली कि उसके वजह से शो में ना एक कॉमिक एलिमेंट बना हुआ रहता था. आई रिमेम्बर कि जब भी सिचुएशन लाइट करना होता था या कुछ करना, ऑब्वियसली बहुत टेंस सिचुएशंस भी उसके अराउंड क्रिएट किए गए थे, बट ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस जब भी वो मर्जर हो रहा था उसके और उसके राइवल के बीच में, जितनी वो नोकझोंक हो रही थी, वो जो एक कंपटीशन चल रहा था, तो वो लुइस का एलिमेंट वैसे शो से हटा नहीं सकते उसको, ऐसे बोला जाए तो. हाँ वो कॉमिक रिलीफ हो गया, एंड ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि बंदा स्टूपिड है, इट्स लाइक फाइनेंस जीनियस राइट. तो वो एक बार कुछ ऐसा सिचुएशन भी होता है किसी केस पे कि जब फाइनेंशियल बातें कर रहे होते हैं तो माइक कोई नंबर बोलता है तो वो 3रे डेसिमल पॉइंट तक वो नंबर बोलता है. हाँ तो एक तो दिखाते हैं कि आई एम द बेस्ट एट व्हाट आई डू. ऐसा काफी मतलब इंटेलिजेंट वे में उन्होंने पूरा पोर्ट्रे किया है कि स्पेशलाइजेशंस जैसे हैं लोगों की, सो हाउ टू गेट दैट इनटू द राइटिंग एज वेल ना.
So actually Aaron Cost, who is the creator na, he's a finance major actual में. Okay. हाँ, so he wanted to make a show on Wall Street, but then like I don't know, Suits बन गया उसका. Okay. So he was kind of into finance, मतलब investment banker type था क्या वो बंदा? हाँ. तो उसको exactly मेरे ख्याल से वही दिखाना होगा कि वॉल स्ट्रीट पे जो एक मैडनेस रहती है उसके ऊपर कोई शो बनाना होगा. हाँ. But And then कितना he typically and then he used to work for a guy named Harvey, and उसकी खुद की मेमोरी भी काफी मतलब ठीक ठाक मतलब अच्छी ही थी, and he used to also like smoke pot. तो मतलब उसने अपने ऊपर like माइक क्रॉस का कैरेक्टर बेस किया है थोड़ा बहुत. That's interesting. And स्मोकिंग हाँ. पॉट से एक सीन के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, जो मेरा आई गेस पूरे शो में सबसे वो तो फेवरेट बहुत सीन है मेरा. awesome था वो तो मतलब. जब माइक और हार्वी एक साथ में वीट पीते हैं, माइक की ग्रैंडमदर की डेथ हो जाती है, हाँ. तब हार्वी उसके घर जाते हैं, तब वो दोनों मैंने पहली बार मतलब हार्वी को अपना गार्ड डाउन करते हुए देखा था उस सीन में. हाँ. तो वो काफी ऐसा फनी टाइप का सिचुएशन हो जाता है, और जब वहां पे माइक उसको बोलते हैं कि आई जस्ट इमेजिन्ड यू टू बी माय डैड, बोले कि ऐसा करके इट्स विन विन ऐसा करके बोलता है. एंड देन वो लोग लुइस के ऑफिस में जाते हैं और कुछ करते हैं. हाँ. Just like one of the points that I wanted to talk about also, क्योंकि Mike Ross is such a very bright person, right? क्योंकि इतना मेमोरी उसका वो है, शार्प is also like a very sad word to say, but मतलब एकदम जो भी उसने देखा होता है उसको याद रहता है, वैसी चीज है ना. So it makes sense photographic for his memory. हाँ, so it makes sense for his character actually to do a lot of weed initially. Do you Does like it? like not sense in the sense रिस्पॉन्सिबली सेंस नहीं है इस बात की, बट एक ये चीज मतलब समझ आती है कि इट्स ऑब्वियसली होल्डिंग हिम बैक है ना, बिकॉज ही यूज्ड टू डू अ लॉट, ही यूज्ड टू स्मोक अ लॉट ना. पर एक वो चीज है कि उसको सब कुछ ही याद रहता है, एंड ये वाली चीज वो कहीं पे एम्प्लॉय नहीं कर पा रहा डायरेक्शन वाइज, बिकॉज एज यू सेड कि एम्बिशन उसका लॉयर बनना था एंड ही इज नॉट एबल टू डू दैट, है ना. तो लाइक कहीं और उसको वो चीज यूज ही नहीं करनी है जब, तो लाइक why to I guess spend his energy on remembering things. I guess कि वो remembering things वाली जहां तक बात है वो God gifted है kind of, क्योंकि है वो God gifted है. हाँ obviously God gifted है, क्योंकि ऐसे होते होंगे लोग, obviously होते हैं ऐसे लोग कि जिनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, और मतलब उनको एग्जैक्ट उतने लेवल तक जितना नहीं कि जितना शो पे दिखाया गया, उनको काफी कुछ याद रहता है. तो मैं इस चीज को एग्जैक्टली वीट के साथ एसोसिएट नहीं करूंगा कि हाँ ठीक है, आपके दिमाग में जितना इंफॉर्मेशन है आपको उसको प्रोसेस करने के लिए या उसको शांत रखने के लिए आपको कुछ रिक्रिएशनल ऐसा कुछ चाहिए. बट हाँ, कमिंग टू द पॉइंट कि उसके कैरेक्टर के हिसाब से उसको वीट के साथ एसोसिएट करना सही नहीं होगा, बट इन द टर्म्स कि हाँ मैं ये चीज मानता हूँ कि वीट वाज समहाउ होल्डिंग हिम बैक. जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि वो बंदा इतना पोटेंशियल वाला है, उसको खुद को इस बात की कहीं ना कहीं रियलाइजेशन थी, बट वो उसके बारे में कुछ करना नहीं चाहता था. और जब इस ऐसे टाइप के सिचुएशन में जब लोग होते हैं, तो आपके आसपास जितने लोग होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. उसके केस में ट्रेवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि उसको सिचुएशन से बाहर निकाल के मतलब उसके पोटेंशियल तक उसको जाने की एनकरेजमेंट दे या कुछ करे. तो वीट के साथ अगर मैं ऐसे एसोसिएट कर दूं तो ये काफी वैसे तो बहुत सारी चीजें हो जाती है कि कोई अल्कोहलिक भी हो सकता है, कि जनरली उसके लिए नहीं, कि बहुत लोग हम ऐसा बचपन से सुनते आ रहे हैं या हमने देखा है कि किसी ने किसी रीजन की वजह से कि कोई ड्रग्स या कोई अल्कोहल या कोई भी रिक्रिएशनल चीजें यूज करना शुरू करी, बट दे मतलब इवेंचुअली हैबिचुएट हो जाते हैं लोग कि ये तो अब चाहिए मेरे को, कि इसके बिना नहीं हो सकता. तो आई वुडंट अग्री कि उसके साथ उसको एसोसिएट करना ठीक रहेगा, बट समहाउ आई बिलीव कि वीड इज अ माइनर पार्ट ऑफ द रीजन कि उसको उसके पोटेंशियल तक पहुंचने नहीं दे रहा था वो. द मेजर रीजन इज ऑब्वियसली ट्रेवर, आई गेस. But he was using this as a tool, ना.
yeah, he हाँ wasn't using this कि वो as a recreational चीजों के लिए नहीं, वो as a exploit ही कर रहा था उसको. एक्सप्लॉइट भी कर रहा था, बट ऑब्वियसली आप किसी को ऐसे ड्रग्ड स्टेट में रख रहे हो, वो बंदा हम्म, अपने लिए ढंग से नहीं सोच पा रहा, इज ऑब्वियसली लाइक हैप्पी बट हम्म, नॉट सक्सेसफुल, राइट? yeah. इतना सीरियस ये शो हमने बना दिया ये सब बात करके। हाँ हाँ, इतना सीरियस शो है नहीं है, हम जितना है सब नहीं, टेक्स्ट में जा बट रहे हैं ना सब टेक्स्ट है, कि सब टेक्स्ट है लाइक इतना। यार उसके पापा मम्मी की एक्सीडेंट हो गया था, तो ये वो, हाँ तो हम हाँ, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जा रहे हैं. मतलब बट ऊपर से हमको ये पूरा डायलॉग्स के बारे में बात बैकड्रॉप, करना चाहिए ना. बैकड्रॉप था ना इन सब बातों के लिए। हाँ हाँ हाँ. सो वो इतना मतलब उन्होंने काफी लाइटली लाइटली बोल दिया कि अच्छा हाँ ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, चलो देखो ये बंदा कोर्ट रूम में जाके क्या कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, तो लाइक लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एज वेल। तो मेरे को एक चीज है कि ना, मेरे को वो माइक रॉस की ना, अगर तू देखेगी तो हर किसी के चार्म करने का तरीका अलग होता है ना. उसकी आंखें अगर मैं देखूँ ना, उसके हम्म, लुक्स में, मतलब डायलॉग डिलीवरी के टाइम काफी एंगेजिंग है उसकी आंखें. तो काफी हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब अगर कोई ऐसा कैरेक्टर में दिखा रहा हो ना जो इतना ज्यादा स्मार्ट है और जिसके पास ऐसी सुपर ह्यूमन वाली कैपेबिलिटी है, तो उसी के पास ऐसी आंखें होंगी. मेरे को ऐसा लगता है, जो कि हाँ भाई, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को आता है. तो पैट्रिक जे वो एडम्स द एक्टर, हाँ। या या तो वो आंखें मेरे को लगता है कि बहुत ऐसा, अगर मैं किसी इंडियन एक्टर के साथ ऐसा एसोसिएट करूँ ना, तो शायद मोहम्मद क्या बोलते हैं, इरफान खान. हाँ, आंखें मतलब लोगों की, उन मेरे को लगता है कि उसको फेशियल एक्सप्रेशंस की जरूरत ही नहीं है, उसकी आंखें इतनी ज्यादा बात कर रही है किसी भी एंड यू सीन में. ट्रस्ट दिस हाँ पर्सन ना, ऐसे काफी ट्रस्ट आता हाँ, है ऐसे लोगों को देख के, एग्जैक्टली इसको मैं कुछ भी एग्जैक्टली, बोल जिनके दूं। आंखों के साथ आप कम्युनिकेट कर सको तो आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगते हो. एग्जैक्टली. And it's like a good thing that he's not using his abilities for the wrong। यहाँ तुम या मुझे ट्रस्ट कर सकते हो, अब मैं तुम्हें लाइक बैक स्टैप करूंगा, बट आई लाइक दीज काइंड ऑफ पीपल एज वेल, जिसको आप काफी मतलब वैसे एज अ कैरेक्टर्स काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। एक तरीके से ये बोल सकते हैं ना कि कई लोग ना खुले किताब की तरह खुद को प्रेजेंट करते हैं, और कई लोग ना ऐसा मुखौटे पहन के खुद को प्रेजेंट करते हैं. कई लोग बहुत अगेन विद द ज्यादा शुरू में मखौटा। ही ओवर शेयरिंग कर देते. कई लोग, या अगर में तो मुखौटा और लेयर्स, अगर हम हाँ ज्यादा सोफिस्टिकेट करके कहना चाहे, हाँ, तो वैसे टाइप के लोग होते हैं ना. बट मेरा मानना है कि ना, लोग एक गिने चुने 5-6 टेम्पलेट के अंदर आते हैं. तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, जैसे डॉन ड्रेपर का कैरेक्टर है कि वो बहुत ही ज्यादा लेयर्ड कैरेक्टर है, आप समझ ही नहीं सकते कि वो बंदा है क्या अंदर तक. हम्म, तो वैसे टाइप के लोग हैं. और अगर माइक क्रॉस की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा ओपन कैरेक्टर है, आप देख सकते हो इनसाइड आउट कि ये बंदा गलत हो ही नहीं सकता, हाँ क्योंकि ये ये है, बंदा जो भी करता है ये इनसाइड एंड आउट सेम इंसान है. लाइक क्योंकि काफी वो अपने ऑनेस्ट बातों के पर्सन थ्रू, अपने लगता है एक्शंस वो। के थ्रू, हाँ, जस्टिफाई करता है. वो उसके कोई शेडी चीजें नहीं रहती है पीछे. सोच हम्म, रहा होता है कि हाँ, मैं इसका ट्रस्ट जीत लेता हूँ. अल्टीरियर मोटिव नहीं हाँ है कोई। हाँ मतलब काफी ओपन एंड पूरा लाइक ऑब्वियसली गुड गुड पर्सन जो होता है ना। हाँ, बिकॉज वो जेल भी गुड चला बाय गया द ना, बुक्स एंड गुड बाय द he लुक्स. didn't wait for the jury to decide, he's like कि मैं खुद ही बोल देता हूँ, and then he like went to jail। हाँ. या वो काफी ड्रामेटिक था ना वो, कि 2 मिनट और रुक जाता तो उसको पता चल जाता ये वो. बट हाँ ऑन द मॉरल हाई ग्राउंड भी वो एक डिसीजन लेने के उस पे था कि उसके कैरेक्टर को काफी ज्यादा जस्टिफाई किया उस सीन ने, आई गेस. हाँ, एंड देन फिर यही बात थी कि बाद में ये बात बाहर आती तो देन इट वुड हैव बीन इवन वर्स, बिकॉज जूरी को तो पता ही था कि ये बंदा ऑब्वियसली लॉयर नहीं है, बट दे वर विलिंग टू से अदरवाइज, एंड दैट इज लाइक कि वो चलो उसको जूरी को चार्म कर दिया उसने, बट लाइक स्टिल बिकॉज ही वांट कि अच्छा मैं बाहर आऊं फिर मैं फ्री, एक वो जो फ्री जो सिर पे बर्डन है उसका, तो वो हट जाए ना। ये ये होता है ना कि कई लोग झूठ बोलने में अच्छे होते हैं, बट कई हम्म। लोगों से झूठ बोला नहीं जाता. आप इतनी देर झूठ बोल रहे हो ना, लाइफ आपकी झूठ भी होगी ना फिर।
हाँ, आपकी लाइफ झूठ पे, जैसे पूरे शो पे कॉन्स्टेंटली जब तक वो रिवील नहीं होता, मतलब जूरी के सामने वो मतलब केस ट्रायल पे नहीं जाता कि वो फ्रॉड है करके, तो कंस्टेंटली शो में इस चीज का रिमाइंडर दिलाते रहते हैं लोगों को कि ना वो बर्टन में है, वो बंदा कंफर्टेबल नहीं है अपने स्टैंड को लेके, ये पॉइंट कि उसको स्पेशली तब आता है व्हेन ही इज लाइक ही इज मेड जूनियर पार्टनर काफी जल्दी, बट देन ही इज नॉट एबल हाँ। टू लाइक promote himself हम्म। he thinks because कि I don't deserve this, ऐसा। नहीं, because it would नहीं, like due to the lie itself ना, he's not, क्योंकि I think ये चीज होती है हार्वी उसको फिर मतलब वो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उस पे ज्यादा आईज नहीं चाहिए उनको माइक पे, हाँ। बट देन हार्वी उसको ओके। बोलता है कि you're not able to go, like इससे आगे नहीं जा पाएगा तू because of this, and then वो ambition वाली कहीं ना बात कहीं इसी and पे सेटिस्फेक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, लाइक बिकॉज उस बंदे को अगर तुमने सीनियर पार्टनर बना दिया आगे जाके या कुछ भी, of like you're staking the whole reputation ना, क्योंकि इट वुड लाइक ऐसा होता भी है उसमें कि जितने भी उसने केसेस हैंडल किए हैं वो सारे वो हो जाते हैं, लॉ सूट के लिए ओपन हो जाते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। आई थिंक एट दिस पॉइंट वी कैन रैप अप आवर डिस्कशन। ओके। हाँ, काफी मतलब अच्छी मतलब डिटेल्ड हमने बातें करी हैं यहाँ पे, लाइक मेरे को तो बहुत मजा आया। बहुत डिटेल्ड, आप बहुत चीजों के अंदर घुस गए, आई गेस। नहीं, इट्स लाइक इट्स नाइस टू बट अच्छा लगा, डिस्कस मतलब कॉन्सेप्ट्स। या 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 concepts, and it's very important to see beyond just the dialogue delivery and just the plot and setup and everything, कि क्या लोगों का सोचना हो सकता है कि इतने लंबे शो को चलाने के लिए लाइक कुछ तो चाहिए होता है, कुछ तो ऐसा कांस्टेंट नमक मसाला, कुछ तो स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए कि वो इतना लंबा शो लोग चला पाते हैं। या हाँ। आई हैड अ ग्रेट टाइम। हाँ, that was my next question कि how was it on being on This Is Not What I Meant? या आई हैड अ ग्रेट टाइम। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज अ लिटिल नर्वस, बट ऐसा है कि यू मेड मी वेरी कंफर्टेबल, तो Oh, that is awesome. kudos to you. Yes. Woohoo. Yeah. Validation. The validation is important and you deserve it fairly. हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। आई हैड लाइक मेरे को बहुत मजा आया, लाइक यू वर एन अमेजिंग गेस्ट एंड काफी लाइक डिस्कशन जहाँ पे भी गई है ये पूरा से लाइक मेरे को भी काफी इंसाइट्स मिले एंड यू नो इट वाज लाइक ऑसम टू डिस्कस दिस शो विद यू एंड लाइक एज अ फैन, राइट? या एज अ फैन, राइट। और मेरे को ऐसा पूरे शो के टाइम ना ये नहीं लगा कि मैं किसी मतलब ये काफी ऐसा हिपोक्रिटिकल होगा बोलना कि मेरे को पता नहीं था कि मैं पॉडकास्ट के लिए बात कर रहा हूँ इस शो के बारे में, बट इन द टर्म्स की हमारी दोस्ती भी ऐसी है ना कि हम बहुत ज्यादा ऐसे चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीजों के ऊपर पे, कि हमें बहुत अच्छा लगता है चीजों के ऊपर डिस्कस करना। तो मेरे को वही एक पॉइंट ऑफ कि हाँ हम अपने अच्छा फेवरेट टीवी शो के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट वाज वेरी गुड फॉर मी। दैट इज ग्रेट। हाँ, ये तो बात है, मतलब आई थिंक बीच में ये बात दिमाग से चली गई होगी कि अच्छा हम पॉडकास्ट, दिस इज अ पॉडकास्ट एंड दिस गोइंग टू बी पब्लिश्ड, राइट? या Any final thoughts that you ओके। want to share? फाइनल थॉट्स, आई थिंक फॉर दोज हु हैव नॉट सीन सूट्स एक ऐसा शो है जिसके बारे में मैं ये चीज बोलना चाहता था, मेरे को अभी सडनली स्ट्राइक हुआ कि बहुत लोग जैसे ना एज अ, मेरे को ऐसा देखा है कि मैंने वो, अगर आप लोगों ने HRX वाली वीडियो देखी होगी ऋतिक रोशन के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो वो वॉर मूवी के लिए यूज करता है, तो जस्ट बिफोर ही गोज आउट फॉर अ सीन ही पंप्स अप हिज बॉडी बाय डूइंग सम एक्सरसाइजेज एंड एवरीथिंग। तो आई गेस ना सूट्स एक ऐसा शो है जो काफी पर्टिकुलर लोगों के फेवरेट मोमेंट्स होते हैं, और जब उनको ना कोई इंपॉर्टेंट नेगोशिएशन के लिए जाना होता है या लाइफ में थोड़ा सा बूस्ट अप या कॉन्फिडेंट होना होता है, तो वो सूट्स देखते हैं। एग्जैक्टली मैं करता हूँ, अभी भी करता हूँ मैं। तो ये काफी Oh, ऐसे, मतलब हाँ, तो कि क्यों आपको चाहिए ना कि लाइफ में कोई हाँ ऐसा बंदा है, ये ऐसे बात कर सकता है, कि ऐसे सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। जस्ट मतलब रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू आर द बॉस। So in that way, Suits is a booster for anyone going into a meeting or an interview or anything that you would like to be reminded of, that you are the boss and you know how to handle the situation well. Well, Harvey Specter is the answer for that is a very good like insight because like it's like Suits is the secret of my energy. that.
Suits is the secret of my negotiation. Yeah. And it obviously क्योंकि काफी confidence तो आता है ये show देखने से कि ये like that's a very good note to end this episode on. Exactly. Yeah. If you're feeling low at some point of time, thinking that कि I can't handle a situation or can't handle a मतलब person individually, so मतलब ये show देखने से वैसा confidence तो बहुत आता. Yes, और इसी हम like confidence के साथ hope करते हैं that I hope like a lot of people listen to this episode and you check out Suits. And thank you, Sameer, for joining me on This Is Not What I Meant. Thank you so much for having me. Yes, and yeah, okay, like you guys can write to me at my email that is like gonna be in the description. So so like once again, thank you, Sameer, for joining me on my show. Thank you very much, Anudeep. It was a pleasure. It was a pleasure indeed. So like with that, I'll end this episode and okay, bye.